Hello guys, so welcome to today's lecture. In the last lecture we have seen about the electrophysiology of the heart, wherein we saw the different channels which are involved in carrying the different ions. We saw the graphs of these channels, how the entire graph of these cardiac potentials are traced, and after that we saw a very small part of applied physiology, wherein I discussed with you people about the drugs which block certain channels. Especially I spoke about the HCN channels. Okay, so before I move on, I'll just tell you all that there are drugs for other channels as well, which I forgot to mention in the last video. So that is all going to be a part of pharmacology, and we do not require it right now. Okay, so today's lecture is going to be on electrocardiography, which we all know as ECG. Okay, now this topic is a very vast topic. The understanding of ECG is not only limited to first year or second year or third year. It comes up till the final year, where during internships or postings you will have to read the ECG and make appropriate diagnosis for the patients. Reading of the ECG and understanding of the ECG is very important in the emergency wards, wherein suppose a patient of myocardial infarction comes in. So how do you understand whether the patient is actually of myocardial infarction, or is there any other issue, or is there any ischemia in the heart, is there any angina pectoris? So all these things will be reflected in the ECG. So in first year we do not need to learn how to read an ECG, okay, the pathological ECGs. In the first year we only are required to understand the basics of ECGs, the leads of ECGs, and somewhat applied physiology, wherein we'll be seeing key what are the different conduction blocks, okay, what are the different issues we can see in ECG, or what ECG can actually read, okay, what type of disease an ECG can read. Okay, so this is a very vast topic and it can go into great detail, but I'll be sticking to first year only because we are going to understand physiology. Okay guys, so let's begin. ECG, okay. ECG, okay, we can take this to be the acronym. This can be an acronym for three different things. Okay, E and C we all know is electrocardio. Okay, the last the G which is there in this word, okay, EC remains same in all the three. The last word can change to gram, it can change to graphy, or it can change to graph. Okay, so ECG can be a short form for electrocardiogram, electrocardiography, okay, or it can be an acronym for electrocardiograph. Now there is a difference, there are differences between the three of these, so I'll just tell you what are the differences. We are starting with the very much basics of ECG. Okay, this topic may be a little complex, but I'll try to make it as simple as possible as required for first year. Okay, electrocardiogram. Okay, so what does electrocardiogram mean? This is the ग्राफ पेपर. ओके, एक ECG मशीन में से, ओके, एक ECG मशीन वी कनेक्टेड टू सम पेशेंट, तो जो भी पेपर स्ट्रिप निकलता है, यू वुड ऑल बी अवेयर ऑफ, और यू नो व्हाट वी रीड द ECG व्हेन वी शो इट टू डॉक्टर्स, द ग्राफ पेपर जिसपे द एंटायर द PQRST वेव्स, आई होप यू वुड हैव सीन ऑल दिस. ओके, ये जो बोलते हैं हम, ओके, द पेपर ऑन विच दिस कम्स इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, the electrocardiography, ECG electrocardiography is the process by which we do this method. Okay, so the process is called electrocardiography, the graph paper is called the electrocardiogram, and electrocardiograph is the machine. ठीक है, तो मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. अ लिटिल बिट ऑफ मिसनॉमर, ग्राफ पेपर को ग्राफ नहीं कहते, ग्राम को ग्राफ पेपर कहते हैं, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को इज द मशीन बेसिकली, जिसमें वी मेक द डिफरेंट सेटिंग्स, द लीड्स जिससे कनेक्ट होता है, वो जो मशीन होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ओके, सो प्लीज बी क्लियर विद ऑल द थ्री टर्मिनोलॉजीज, इट मे बी हेल्पफुल फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन. ठीक है. ठीक है, now what is the electrocardiogram?
So it is basically a graphical representation of electrical conductivity of the heart. ठीक है, तो graphical representation of the electrical conductivity of the heart is what we call as the ECG or the electrocardiogram. ठीक है, अब why is this possible? Why are we able to find out the electrical conductivity? Why? I'm not talking कि इसका use क्या है. Obviously इसका use है, तो we'll be enumerating those points कि what are the uses of ECG and what all an ECG can find out. But right now I'm telling कि this concept, okay, this is something man-made. This is not natural. Okay, so we have done certain research and we have found out that the human body is a volume conductor. Please make a note of this term. Okay, it is a वॉल्यूम कंडक्टर. ठीक है, अब वॉल्यूम कंडक्टर क्या होता है? बेसिकली आवर बॉडी हैज़ ब्लड एंड ब्लड में है आयॉन्स. ओके, सो दीज आयॉन्स एज यू वुड ऑल हैव स्टडी इन केमिस्ट्री और फिजिक्स इन योर 11th and 12th grade preparation for your NEET UG. So these ions or any ion, positively charged, negatively charged, can carry electricity. Okay, and यही चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं टू फाइंड आउट द ECG. अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट देखा, तो वी सॉ दैट देयर इज पोटेशियम, देयर इज कैल्शियम, देयर इज सोडियम इन्वॉल्व इन ऑल दिस. तो ये सारे जो भी है आयंस, ओके, तो दीज हेल्प अस टू यू नो, दीज आर, इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी आयंस की प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में जो सीखते हैं कि दे कैन मूव अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड ऑन देम. ठीक है, तो बस यही चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड सिंस द बॉडी इज अ वॉल्यूम कंडक्टर, व्हाई इज इट अ वॉल्यूम कंडक्टर? Because I told you we have different types of ions in it, and these ions can move according to the electrical field that is applied around it. तो बस यही रीज़न है हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ तक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग. ओके, नाउ वील जस्ट गो थ्रू अ स्मॉल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. ठीक है, ओके, I have put down this scientist's name over here. I'll just change the color. ठीक है, Einthoven was the scientist who came up with the idea of recording the electrical activity of the heart. ठीक है, I have still not covered the various phases of the cardiac cycle. Okay, जब हम cardiac cycle देखेंगे तब we'll already be ready with the concept of ECG. So that time it will be very easy for me to explain you कार्डियक साइकिल के साथ इंटीग्रेट जब हम करेंगे ECG को, तो इट विल बी वेरी सिंपल बिकॉज यू ऑल विल बी अंडरस्टैंडिंग द ECG राइट नाउ ओनली. ठीक है, सो आइंटोवेन वाज द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज कि हाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हार्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वी कैन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ओके, सो what he did was that he took galvanometers. Okay, I'm pretty sure everybody knows what a galvanometer is. Galvanometer is a device which can detect current. Okay, it cannot tell you कि current की value क्या है, but it can detect current. I hope everybody knows this. So what he did, he took series में galvanometers लिया, series and parallel. I hope everybody still remembers this. Series is जब ऐसे connect करते हैं across the same potential difference. If you have many different devices, that's what is a series arrangement. And if the potential difference across all the electrical appliances, okay, is same, तो इसको हम parallel arrangement कहते हैं. ठीक है, not required, just for your understanding मैं सिर्फ अगर याद दिलवा दूँ इसीलिए. ठीक है, तो इसने क्या किया, इन्होंने सीरीज़ में बहुत सारे गैल्वेनोमीटर्स को कनेक्ट किया and then he started recording the electrical activity of the heart. अब कैसे किया, क्या किया is very primitive. Okay, we are not much bothered with that, but you need to know the scientist Einthoven because he has given the Einthoven's law. ठीक है, and he has also proposed this triangle which is called the Einthoven's triangle. ठीक है,
सो आई होप अब तक सब क्लियर है कि ECG क्या है, ECG से क्या वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. Why is this possible? Because the body is a volume conductor, and this is the historical basis. Einthoven, we'll be talking about Einthoven's law and Einthoven's triangle a little later in this video. Okay, and what he did, just the basics of this, not required from your exam point of view, but just as a interest and little historical aspect of physiology that I would like to take over here. Fine. So now we'll just see what are the different uses of ECG. So ECG का first use is to find out the anatomical position of heart, ठीक है, of the heart, ठीक है. Number 2 पे we have the size of chambers, ठीक है. Number 3 and the most important is to find out any particular. Okay, so number 3 is what, to find out any diseases, any conduction disorders. Okay, हार्ट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यही इसका मेन रोल है. कोई भी डिजीज़ है या कोई भी डिसऑर्डर है हार्ट का, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कंडक्शन डिसऑर्डर्स है या फिर एट्रियल डिसऑर्डर्स है, एट्रियल एरिथमियाज वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट, इसमें सबसे मेन तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है. मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ वेरी much of a common disorder in the world. Okay, myocardial infarction is also called the heart attack in the common in the layman's terms. ठीक है, तो myocardial infarction इससे find out कर सकते हैं. ठीक है, यही majorly इसके लिए use होता है. Obviously there are many different things which you all will be studying in your the further years, जहाँ पे pathology वगैरह integrate किया जाएगा ECG के साथ. And finally suppose किसी को ये लगाया गया है pacemaker. Okay, what is pacemaker? SA node is the natural pacemaker of the heart, but in case there is any issue in the pacemaker of the heart, we can implant an artificial pacemaker. Okay, तो इसकी एक्टिविटी भी चेक करने के लिए हम लोग ECG यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब आई होप मोस्ट ऑफ यू ऑल वुड बी थिंकिंग कि एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट ये क्या चीज़ है, ये कैसे ECG से समझ में आता है. ओके, so sometimes there is this embryological defect in people where the heart is, okay, we all know that heart is on the left side. Now heart is on the left side का मतलब क्या है? Okay, I'll just tell you in little detail. ठीक है, suppose this is the heart, I'll draw the heart. ठीक है, ये heart है, ये atria है, ये ventricle है. ठीक है, तो इसका जो apex है, heart का जो apex है, this is towards the left. That's what we mean by the heart is on the left side. Heart actually if you go to see in anatomy, तो heart ऐसे center में यहाँ पे है, heart is in the center over here. ठीक है, but क्या है ना, it is little tilted to the left. लेफ्ट में टिल्टेड है मतलब क्या, हार्ट का एपेक्स लेफ्ट साइड पे है और इसका जो बेस है, दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट. ओके, दिस ऑल विल बी कवर्ड इन एनाटॉमी, डू नॉट वरी फॉर दैट. एंड दिस इज द एपेक्स. तो इसका एपेक्स और बेस ऐसा अलाइंड है कि एपेक्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकली डिफेक्ट क्या होता है ना, समटाइम्स दिस हार्ट इज ऑन द राइट साइड. मतलब क्या, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड बट इट इज ऑन द राइट साइड. तो अब अगर ये राइट साइड पे होगा तो व्हेन आई विल बी टीचिंग ऑल द एंटायर द डाइपोल सिस्टम ऑफ द हार्ट. ठीक है, व्हेन विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो जनरेट हो रही है ECG कैसे पिकअप करेगा, वेक्टर्स का थोड़ा सा वेक्टर्स व्हाट वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. ठीक है, हाँ फिजिक्स में थोड़ा सा उसका नॉलेज भी इसमें आएगा. तो व्हेन आई विल बी टॉकिंग टू यू ऑल दैट, तो व्हाट विल बी सीइंग ना कि जो मेन वेक्टर बनता है हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, वो ऐसे लेफ्ट साइड में आता है. दिस इज़ द फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर. आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स कि थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ. अगर ऐसे कोई वेक्टर्स है तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर वी यूज़ टू ड्रॉ इट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर में डबल एरो लगाते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ. तो जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है वो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में आता है. ओके, वी विल बी सीइंग व्हाई, हाउ, कैसे, सब कुछ इन नॉट इन टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वेल आई विल बी टीचिंग ऑल द एंटायर डाइपोल सिस्टम ऑफ द हार्ट कि ये ECG ये कैसे रीड, मशीन तो है बट मशीन रीड जो करता है वो क्या रीड करता है, कैसे रीड करता है, दैट ऑल्सो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर है हार्ट का, इट ऑलवेज कम्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट स्लोपिंग डायरेक्शन. ओके, बट इन डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है, डेक्स्ट्रो मीन्स व्हाट, राइट, एंड कार्डिया इज द हार्ट. सो व्हेन द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, मतलब क्या,
बेस मैंने क्या बोला, बेस राइट साइड पे है, एपेक्स लेफ्ट साइड पे है. बट अगर ये हार्ट ऐसे बन गया किसी में, ओके, डेक्स्ट्रोकार्डिया के बहुत पेशेंट्स होते हैं, एंड दिस विल बी कन्वर्ट इन एम्ब्रियोलॉजी की एज टू व्हाई इट इज हैपनिंग. तो इफ द हार्ट इज दिस वे, एपेक्स इज ऑन द राइट साइड, तो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट वेक्टर इसका राइट साइड में आएगा. ठीक है, दिस इज द नेट रिजल्टेंट वेक्टर, द स्टाइलस. ओके, आई होप यू कैन सी द स्टाइलस. तो ये स्टाइलस है, ये नेट रिजल्टेंट दिखा रहा है. ठीक है, दिस विल कम इन द राइट साइड. यू कैन फाइंड आउट द एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ द हार्ट थ्रू ईसीजी. ठीक है, फाइन. तो ये राइट साइड पे आएगा. तो अब वेव्स जो पी क्यू आर एस टी वेव्स जो हमने पढ़ा है, इनमें जो डिफरेंट लीड्स है, इनमें देयर विल बी सर्टन चेंजेस. ओके, सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी रीच टू द डायपोल पार्ट एज आई एम टेलिंग यू. तो ऑब्वियसली इफ द हार्ट इज ऑन द राइट साइड, तो सारे वेव्स उल्टे आएंगे. कौन से लीड में क्या उल्टा आएगा एंड ऑल दैट आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि नेट रिजल्टेंट वेक्टर लेफ्ट साइड की जगह पे नहीं, राइट साइड में आएगा अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया है. ओके, सो वॉट एवर ई सी जी, नॉर्मल ई सी जी वी स्टडी इज लेफ्ट साइड पे रिजल्टेंट वेक्टर के हिसाब से हम लोग ई सी जी समझते हैं. बट डेक्स्ट्रोकार्डिया हो गया तो एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग विल बिकम द कंप्लीट ऑपोजिट, एंड दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड आउट द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट एज वेल. फाइन. रिलेटिव साइज ऑफ चेंबर्स में क्या होगा, अगर कोई चेंबर सपोज देयर इज हाइपरट्रोफी ऑफ द एट्रिया, हाइपरट्रोफी ऑफ द वेंट्रिकल, तो एंड यू नो देयर इज समथिंग, अगर साइज बढ़ गया है हार्ट का, तो क्या होगा, देयर विल बी सर्टन चेंजेस इन ईसीजी अगेन, व्हिच इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, बट यू कैन फाइंड आउट रिलेटिव साइज ऑफ द चेंबर्स ऑफ द हार्ट एज वेल, क्योंकि जो डिस्टेंसेज है बिटवीन द डिफरेंट वेव्स वो चेंज हो जाएंगी. ठीक है, डिजीज एंड कंडक्शन, इसमें क्या होता है, एम आई के लिए यूज होता है. एम आई में वील बी सीइंग कि एस टी सेगमेंट का एलिवेशन आएगा. व्हाट इज एस टी सेगमेंट एंड ऑल दैट टुडे ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो डोंट वरी. तो डिजीज एंड कंडक्शन ऑफ द हार्ट, आई मीन द डिसऑर्डर्स, कंडक्शन डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट, या फिर कोई भी डिजीज है, यू कैन कैच इट. वाई, बिकॉज ओके, व्हेन आई विल बी टॉकिंग टू यू ऑल अबाउट द नॉर्मल ईसीजी, तो उससे कोई भी डिविएशन आएगा तो दैट रिजल्ट्स इन, मतलब दैट विल टेल यू ऑल कि देयर इज सम डिजीज और सम टाइप ऑफ पैथोलॉजी दैट इज देयर इन द हार्ट. ठीक है, एंड पेस मेकर तो आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल कि आर्टिफिशियल पेस मेकर अगर किसी को लगाया जाए तो उसकी एक्टिविटी भी हम हार्ट के ईसीजी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा एरिथमियाज. ओके ओके, ये ऑल दिस कम्स अंदर द डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट ओनली. ओके, अब नॉर्मल ईसीजीज में आएगा ये सब. अगेन दैट विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ ईसीजी, और परहैप्स द सेकंड पार्ट ऑफ ईसीजी. आई विल चेक इट आउट कैसे क्या बैठ रहा है वीडियो में. ठीक है, तो एरिथमियाज ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, फाइन. ओके, सो दिस इज इनफ अबाउट ईसीजी. क्यों परफॉर्म किया जाता है, ईसीजी क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसका रीज़न ये सब है. बट ईसीजी पॉसिबल क्यों हुआ, वाई वॉज द ईसीजी पॉसिबल, इसका रीज़न है वॉल्यूम कंडक्टर ऑफ द हार्ट. द बॉडी इज अ वॉल्यूम कंडक्टर. बॉडी, हाँ, हार्ट नहीं, बॉडी इज अ वॉल्यूम कंडक्टर. ठीक है, सो दिस ऑल टेल्स यू अबाउट वाई वी कैन you know perform an ECG and what all we can find out. ठीक है, so I'll come to this graph later on. ठीक है, ये दोनों ग्राफ पे मैं बाद में आऊँगा. ओके, इसमें थोड़ा बहुत समझने की पार्ट है. ओके, so now put your heading as ECG. Okay, अब तक it was all introduction, what all we can find out. All these points will be taken in little detail in the further lectures. ठीक है, अब जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ECG का, तो ECG रिकॉर्ड करने के लिए we can use two different machines. One is the string galvanometer. ठीक है, और दूसरा है रेडियो एम्पलीफायर. ठीक है, these are the two machines by which we can record an ECG. ठीक है, आजकल तो अब I have not put a photo in this slide over here कि how does the modern ECG machine look. Okay, I'll put it in the next lecture. I'll show you all a photo की the modern ECG machine, how does it look. ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया, ये याद रखना. ECG दो, we have two different machines by which we can record an ECG, which is a string galvanometer and radio amplifier. ठीक है, now let's understand about the ECG paper. अब ECG paper, okay, this is an ECG paper. ठीक है, ये ECG paper है, और इस पर थोड़ा सा हम जूम करते हैं थोड़ा सा. आई एम नॉट श्योर इफ यू ऑल विल बी एबल टू सी दिस क्लियरली. ओके, थोड़ा बहुत दिख रहा है, प्लीज़ बेयर विद द इमेज, थोड़ा क्वालिटी ख़राब है इमेज का. ओके, तो दिस इज एन ECG पेपर. नाउ ऑन दिस ऑल्सो वी नीड टू नो सर्टन थिंग्स. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज देर आर 5 small boxes. Okay, you all may not be able to see the boxes, but I think you all are able to see the dots. Okay, तो modern ECG पेपर पे I don't know if I am able to
मार्क दीज डॉट्स करेक्टली, ठीक है, ये हो गया फिफ्थ वाला, ठीक है। तो देर आर 5 स्मॉल स्क्वायर्स, ओके, एंड 5 स्मॉल स्क्वायर को कवर करते हुए है एक बड़ा स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू कैन सी कि यू कैन सी 4 स्मॉल डॉट्स और यू कैन सी 5 स्मॉल डॉट्स। एक्चुअली बॉक्स के अंदर यू विल बी एबल टू सी 4 स्मॉल डॉट्स ओनली, ठीक है। बॉक्स के अंदर यू विल बी एबल टू सी 4 स्मॉल डॉट्स बिकॉज द फिफ्थ डॉट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस बिगर स्क्वायर, ठीक है। तो हर स्क्वायर के अंदर, हर बड़े स्क्वायर के अंदर यू विल बी हैविंग 4 स्मॉल बॉक्सेस, सॉरी 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, ओके। अब ये जो छोटे वाले बॉक्सेस है इनका डायमेंशन क्या है, ठीक है, इनका डायमेंशन है, ओके, आई जस्ट मूव ऑन, ठीक है। सो एवरी स्मॉल बॉक्स, स्मॉल स्क्वायर, ओके, वी कैन से इसका डायमेंशन है 1 mm बाय 1 mm, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि इन द एग्जाम्स दे में गिव यू कि सपोज द डिस्टेंस बिटवीन 2 RAs और 2 QRS कॉम्प्लेक्स इज 20 बॉक्सेस, तो व्हाट इज़ द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन, ओके। और ये भी कैलकुलेशन हम आगे पढ़ेंगे अभी, बट उसके लिए ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर रिक्वायर्ड कि एवरी स्मॉल स्क्वायर का डायमेंशन इज 1 mm बाय 1 mm। सो फॉर, एंड आई टोल्ड यू कि जो लार्ज बॉक्स है, okay, 5 small squares, I am going to write SS, 5 small squares make up a large box, ठीक है, large box LV, ठीक है। तो 5 large box, तो एक large box का डायमेंशन क्या होगा 5 mm बाई 5 mm, ऑब्वियसली 1 into 5 is 5, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इट, ठीक है। अब जो ये देखा हमने, ओके, ये पहली बात है, ये समझ लो। और दूसरी बात क्या है, द x एक्सिस एंड यू हैव द y एक्सिस, ठीक है। y axis, so what does the x axis denote? x axis denotes the time, ठीक है। तो मतलब क्या, और y axis denotes the voltage in millivolts, ठीक है। कितना एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड विल टेल यू द वोल्टेज ऑफ द, मतलब जितने ज़्यादा बॉक्सेस कवर होंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज है इनका, ठीक है। तो अब क्या है ना इसमें आगे, ओके, सो एम्पलीट्यूड या वोल्टेज इज ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब बिकॉज हमने क्या बोला कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एवरी स्मॉल बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू 0.04 सेकेंड्स, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस, ये सब डेटा मैं अभी रेड कलर में मार्क ही कर देता हूँ, ओके। स्टिल सम मोर थिंग्स आर यू नो टू बी इंक्लूडेड ओवर हियर। तो एवरी स्मॉल बॉक्स हैज़ करस्पॉन्ड्स टू 0.04 सेकेंड्स, तो एवरी लार्ज बॉक्स, तो वन लार्ज बॉक्स विल करस्पॉन्ड टू 5 into 0.04 which gives you 0.20 seconds। मतलब हर लार्ज बॉक्स विल गिव यू द टाइम एस्टिमेशन ऑफ 0.20 seconds, 0.2 seconds, एंड एवरी स्मॉल बॉक्स विल गिव यू, इसका डिवाइड बाय 5 कर लो तो 0.04, ठीक है। अब ये चीज़ आया कहाँ से, ओके, ये तो यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट, देयर इज़ नो ओके वे फॉर दिस, इसमें कोई वे नहीं है जो मैं याद करवा सकता हूँ आपको। बस ये याद रखना कि हर स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड्स को डिनोट करता है, हर लार्ज बॉक्स 0.20 सेकेंड्स को डिनोट करता है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन आया कहाँ से, तो आई जस्ट टेल यू कि जो ECG पेपर है, अब ECG पेपर क्या है ना, व्हाट डू वी हैव अ रोटेटिंग ड्रम इनसाइड, ये रोटेटिंग ड्रम के ऊपर ECG पेपर बाउंड होता है, ठीक है। और ECG पेपर का जो कोटिंग दिखेंगे ना आप, ओके, वेन एवर इफ यू गाइज एवर गेट अ चांस टू टच द ECG पेपर, तो जस्ट टच द ECG पेपर ना, आपको एक हल्का सा स्मूथनेस फील होगा उस पर। वो किस बात के लिए है ना, बिकॉज इट इज़ कोटेड विद प्लास्टिक। अब ECG पेपर को प्लास्टिक से कोट किया गया है, तो प्लास्टिक पे लिखना कैसे है, तो लिख तो नहीं सकते ऐसे एज सच प्लास्टिक पे, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मूथ। इफ यू गेट अ चांस एवर टच एन ECG पेपर, प्लीज टच एन ECG पेपर एंड सी। तो क्या होता है ना, अंदर एक रोटेटिंग ड्रम है, तो क्या होता है, ये रोटेटिंग ड्रम रोल होते जाएगा और इसके ऊपर एक स्टाइलस होता है। अब वो स्टाइलस किससे कनेक्टेड होता है, स्टाइलस लीड से कनेक्टेड होता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चेंज हो रहा है वैसे आपका स्टाइलस हिलेगा। इसका भी एक वीडियो व्हेन आई विल बी टेकिंग द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी के, प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी में विल बी सीइंग यू नो फ्रॉग के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए,
तो उस पर वी एग्जैक्टली गेट टू सी कि ये जो रोटेटिंग ड्रम है और ये जो स्टाइलस है ये एग्जैक्टली मूव कैसे होता है। ओके हाँ, सो मैं बोल रहा था कि ये कैलकुलेशन कहाँ से डेवलप किया है हमने। तो क्या है ना, हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ड्रम। तो ड्रम बेसिकली रोल होगा और उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है। प्लास्टिक कोटिंग को क्या ना हम लोग मेल्ट करते हैं। तो जो स्टाइलस होता है, ये जो स्टाइलस है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ओके, ऐसे ही एक ईसीजी मशीन के अंदर स्टाइलस होता है एंड दैट स्टाइलस इज हॉट स्टाइलस। मतलब क्या, इसको करंट इसको गर्म करता है ये स्टाइलस को। तो बेसिकली स्टाइलस कुछ मार्क नहीं करता है, स्टाइलस सिर्फ उस पर चलता है और ईसीजी पेपर का जो कोटिंग है उसको मेल्ट करता है। जैसे ही मेल्ट करता है एक ब्लैक लाइन डेवलप होने लगता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट कि हाउ द ईसीजी मशीन वर्क्स। तो एक रोटेटिंग ड्रम है, उसके ऊपर एक हॉट स्टाइलस चलता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग है। ये हॉट स्टाइलस वो प्लास्टिक कोटिंग को मेल्ट करते जाता है, आपका ईसीजी बनते जाएगा। ठीक है, हाँ। नाउ अनदर थिंग इज दैट हाउ डिड वी अराइव टू दिस 0.04 सेकेंड। एवरी स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड को क्यों डिनोट करता है। तो क्या है, जो ये जो रोटेटिंग ड्रम मैंने जो कहा कि जो रोटेटिंग ड्रम पे जो घूमेगा ये, तो ये रोटेटिंग ड्रम का स्पीड इज 25 मिलीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, रोटेटिंग ड्रम का स्पीड इज 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो अगर 25 मिलीमीटर एक सेकेंड में ट्रैवर्स हो रहा है, तो 1 मिलीमीटर का बॉक्स, हमने क्या कहा, ईच बॉक्स इज 1 मिलीमीटर का। तो 1 मिलीमीटर में डिनोट हाउ मच टाइम, तो लेट्स से x सेकेंड्स। ओके, सो बस x इंटू 25 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/25 सेकेंड्स। ठीक है, विच इज ऑल्सो 0.04 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से वी फाइंड आउट कि 1 मिलीमीटर विल डिनोट टू 0.04 सेकेंड्स एंड ऑब्वियसली इंटू 5 कर दोगे। क्यों इंटू 5, बिकॉज ईच लार्ज बॉक्स कंटेन्स 5 स्मॉल बॉक्सेस। तो इंटू 5 कर दोगे तो 0.2 सेकेंड विल बी फॉर योर ईच लार्ज बॉक्स। ठीक है, सो ये सब चीज़ आई विल जस्ट मार्क इट इन रेड कलर, ये सब आना ही चाहिए। ओके, आई विल जस्ट अंडरलाइन 1 2, ये डायमेंशंस है। ओके, दीज आर डायमेंशंस। ओके, ये डायमेंशंस है। ओके, स्मॉल बॉक्स का ये स्पीड है, लार्ज बॉक्स का ये सॉरी स्पीड नहीं है, इट इज़ द टाइम विच इट एवरी स्मॉल बॉक्स डिनोट्स 0.04 सेकेंड्स एंड एवरी लार्ज बॉक्स डिनोट्स 0.2 सेकेंड्स। ओके, ये 5 नहीं है, इसको 1 सेकेंड इरेज करके 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, देन यू नीड टू नो द रोटेटिंग ड्रम का स्पीड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके जी के पार्ट में अच्छे से दिया हुआ है। ओके, ऑल दिस डेटा इज गिवन इन द जी के पार्ट एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। मैंने दिखाया कि 0.4 सेकेंड एक बॉक्स के लिए कैसे डिनोट करता है फॉर दोज हु यू नो, दोज हु डू नॉट यू नो वांट टू बाय हार्ट सो मच एंड दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कि ईसीजी के पेपर के बारे में हमने समझाया। ओके, फाइन।